Good morning, everyone. Question number 2. From the following balance sheet of Alpha Limited, prepare a comparative balance sheet as on 31st March 2018 and 31st March 2019. They have given you balance sheet. Equity share capital, owned capital, preferential capital, owned capital, reserves, owned capital, 50% loans, borrowed capital. These are current liabilities. These are current liabilities. Then land, right? Fixed asset, fixed asset, fixed asset. And these three are the current assets. Correct, sir? ध्यान देना, कंपैरेटिव बैलेंस शीट लिखो. Sources of funds. Particulars. Previous year, current year. Absolute change, percentage change. Sources of funds. उसमें सबसे पहले ओन्ड कैपिटल, उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, बोलो 2 lakhs has become 2,50,000. So absolute change is a positive 50,000 increased. So 50,000 divided by 2,50,000, 1/5, 20%. Absolute change is plus 20%. आगे next. You can write net change, but टेक्स्ट बुक में absolute change लिखा तो absolute change लिखो ना, क्या फर्क पड़ता है. B, preference share capital. पहले कितना था 80-80, मतलब कोई नए प्रेफरेंस शेयर आपने इशू नहीं किए. इक्विटी शेयर्स आपने 50,000 के इशू किए साल भर में. प्रेफरेंस शेयर्स आपने कोई भी इशू नहीं किए, ना ही रिडीम किए. डिक्रीज होता है तो आपने रिडीम किए, रिटर्न किए. सी, रिजर्व एंड सरप्लस. रिजर्व सरप्लस इंक्रीज होते हुए तो प्रॉफिट हुआ होगा, डिक्रीज हो गई तो लॉस हुआ होगा. 1 lakh has become 1,40,000. इंक्रीज बाय 40,000 विथ रिस्पेक्ट टू. अच्छा, ये गलत है मेरा, क्योंकि जो परसेंटेज निकालना है दैट शुड बी विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर ना. 50,000 डिवाइड बाय 2 lakhs. यस यस, बराबर. कार्तिक ने फर्स्ट टाइम कुछ तो बराबर बोला मुझे. 50,000 with respect to 2 lakhs, 1/4 मतलब 25%. Yes. Then 40,000 divided by 1 lakh, 40%. Reserves increase by 40%.
So owned capital is 3,80,000 in the previous year. In the current year it is कितना है 3 lakhs 4,20,000 4,70,000 शायद से. It is increased by 90,000. So 90,000 with respect to 3,80,000. Overall, it is increased by 23.68%. 23.68%. Second, owned capital, owned funds, borrowed funds, borrowed capital or borrowed funds. उसमें डिबेंचर्स आ जाएंगे 15% डिबेंचर्स. बोलो 60,000 के 51,000 हुआ. डिबेंचर्स हैव डिक्रीज्ड by 9,000. डिबेंचर्स हैव डिक्रीज्ड by 9,000. आपने रिपे किए डिबेंचर्स, आपने रिपे किए. आगे 9,000 divided by 60,000, 15%. Therefore 60,000 प्रीवियस ईयर में बोरो कैपिटल था, करंट ईयर में डिक्रीज हुआ है, ओवरऑल 9,000 से डिक्रीज हुआ. This is A, suppose this is B. Therefore, total sources of fund. A plus B. $4,40,000 in the previous year. In the current year, 5,21,000. Increase is 5,21,000 minus 4,40,000. 81,000 का इंक्रीज है. परफेक्ट. 90,000 प्लस 9,000 माइनस 81,000. 81,000 का प्लस. So 81,000 increase in the sources of fund. 81,000 with respect to previous 4,40,000. Almost 18% point 41. 18.41% increase. Now application of the funds. Application of the funds. 1. Fixed assets. A. लैंड 80 का 1 लाख हुआ है. 80,000 का 1 लाख हुआ है. सिंपल क्वेश्चंस है. So 20,000 से इंक्रीज हुआ लैंड. 20,000 विथ रिस्पेक्ट टू 80, 1/4, 25%. बी. लैंड के बाद कौन सी फिक्स एसेट है? बिल्डिंग 60 का 90 हुआ है. It is increased by 30,000. 30,000 divided by 60,000. one half, 50% से इंक्रीज हुआ. Then plant and machinery 73,000 has become 1,73,000. Increase by 1 lakh. 1 lakh अलबत्ता डबल 100% ज्यादा चेंज होगा. 1 lakh डिवाइडेड बाय 73,000. 136% से 198.
पर 99 ऑलमोस्ट डाल देना 73 पहले 70,000 था 1 लाख से इंक्रीज हुआ मतलब डबल डबल आप बोल सकते हो ना कि 100% चेंज क्या होगा 70,000 उससे भी ज्यादा है आगे टेक द सब टोटल what are the fixed assets 80,000 plus 60,000 1 lakh 40 plus 73 213 1 lakh 90 right plus 173 363 so it is increased by 1 lakh 50,000 so fixed assets increased by 1 lakh 50,000 with respect to 2 lakhs 13,000 increase is by almost 70% 70.42%. Then second, working capital. इन्वेस्टमेंट्स है क्या कुछ नहीं वर्किंग कैपिटल या इन्वेस्टमेंट्स लिखो now working capital third वर्किंग कैपिटल ध्यान देना ठीक है वर्किंग कैपिटल उसमें ए करंट एसेट्स करंट एसेट स्टॉक 1 लाख 50 1 लाख 10 1 lakh 50 has become 1 lakh 10 decrease हुआ है by 40,000 40,000 with respect to 1 lakh 50 almost 26.67% से डिक्रीज हुआ है सेकंड डेटर्स 1 lakh 20 has become 1 lakh 40 इंक्रीज हुआ है 1 lakh 28 has become 1 lakh 40 increase by 12,000 12,000 with respect to 1 lakh 28,000 almost 9 point increase हुआ है 9.375 third current assets is bank balance 34,000 has become 37,000 3,000 से इंक्रीज है $3,000 with respect to 34,000 8.88% से इंक्रीज हुआ है so these are subtotal of the current assets current assets 1 lakh 50,000 plus 1 lakh 28,000 plus 34,000 current assets in the previous year is 3 lakh 12 and in the current year 1 lakh 10,000 plus 1 lakh 40,000 2 lakh 50 आएगा वो plus 37 2 lakh 87 yeah overall decrease by 25,000 decrease by 25,000 with respect to 3 lakh 12,000 so decrease is 8.01%. B current liabilities उसमें फर्स्ट
कौन है करंट लायबिलिटीज में? क्रेडिटर्स 50,000 has become 80,000. Increase by 30,000. 30,000 with respect to 50,000. 60%. Creditors are increased by 60% in the current year. Then bills payable 10,000 से 6,000 हुए, आपने रीपेड किए हैं साल भर में. 10,000 has become 6,000, so decrease by 4,000. 4,000 with respect to 10,000, 40% से डिक्रीज हुए. And third, provision for tax. Tax payable is a current liability, which is 25,000 has become 43,000. Increase by I think 18,000. So 18,000 with respect to 25,000. Almost 72% से tax payable increase हुआ in the current year. Take the subtotal of current liabilities. 60, 85,000. 1,20,000, 1,26,000, 1,29,000. So increase by 44,000. So 44,000 with respect to 85,000. Almost increase by 51.76%. So फिक्स असेट को ए बोला है, इन्वेस्टमेंट को बी बोला है, करंट असेट्स को सी बोला है, करंट लायबिलिटीज को डी बोला है. Therefore करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल, सॉरी करंट लायबिलिटी बोला, वर्किंग कैपिटल. What is working capital? What is working capital? Current assets minus current liability. That is C minus D. C minus D. So 3,12,000 minus 85,000. At the beginning of the year, हमारे पास 3,12,000 के current assets थे and current liabilities थे 85,000 के. तो हमारे पास working capital था 3,12,000 minus 85,000. हमारे पास 2,27,000 का, हमारे पास इसको हम ई बोल रहे हैं, 2,27,000 का करंट वर्किंग कैपिटल था. व्हाट अबाउट एट द एंड ऑफ द ईयर 2,87,000 के करंट असेट्स हैं माइनस 1,29,000 के करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुए ना. सो 1,58,000 का वर्किंग कैपिटल है. 1,58,000 का वर्किंग कैपिटल है. ओवरऑल वर्किंग कैपिटल साल भर में डिक्रीज हुआ है. इट इज डिक्रीज बाय 69,000. इट इज डिक्रीज बाय 69,000. 2,27,000 का वर्किंग कैपिटल 1,58,000 हुआ है. ठीक है, आपको क्या करना है, -25,000 माइनस नेट इंक्रीज इन करंट असेट माइनस नेट इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज करोगे. 25,000 माइनस 44,000 करोगे तो -16,000 आएगा. डिवाइडेड बाय, ये दोनों माइनस होते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐड नहीं होते, माइनस होते हैं. सो 69,000 से आपका वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू 2,27,000. सो इट इज डिक्रीज बाय 30.40% almost. And therefore application of the funds, total application of the funds, A, B, C, D and E. हाँ ले लो. 2,13,000 प्लस 0 प्लस
सी डी नहीं लेना चाहिए मैंने, डायरेक्टली मैंने ई लेना चाहिए, वर्किंग कैपिटल प्लस 2,27,000, 4,40,000 ओपनिंग में कितना था, सोर्सेस ऑफ फंड देखो 4,40,000, एप्लीकेशन ऑफ द फंड 4,40,000, टैली होना ही चाहिए, यहां पे ले लो कैलकुलेटर। एट द एंड ऑफ द ईयर व्हाट इज योर फिक्स एसेट्स 3,63,000 प्लस 0 प्लस वर्किंग कैपिटल 1,58,000 प्लस 1,58,000 5,21,000। So opening में what was my source of funds 5,20,000, मतलब at the end of the year source of funds were 5,21,000, application of fund is also 5,21,000। ये आपका चेक है, दोनों सेम होने चाहिए। So can I say increase by 81,000 overall 18.41%। लिखो खाली नंबर ऑफ आइटम्स इंक्रीज हो, नथिंग एल्स, नंबर ऑफ आइटम्स इंक्रीज हो, नथिंग एल्स, लिखो ठीक है। ये आ गया आपके एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, फिक्स असेट्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे दूंगा, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, देयरफॉर वर्किंग कैपिटल, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। ठीक है यहां तक। अब क्वेश्चन 1 डन, क्वेश्चन 2 डन, 3 डन, 4 डन। अब हमें इनकम स्टेटमेंट करना है, ध्यान देना, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, सेम कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। ध्यान देना, दिस इज द क्वेश्चन। लिखो कंपैरेटिव, टाइम पास क्वेश्चन है, टाइम पास। ध्यान देना, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। सेम करना है, इनकम स्टेटमेंट लिखना है, इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट एंड फिर करंट, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, दैट्स इट। ध्यान देना क्या लिखा है क्वेश्चन में, income statement of ABC Limited for the year ended 31st March 19 and 31st March 20 is given below. Prepare comparative income statement. ध्यान देना कितना सिंपल किया उन्होंने, ये सॉल्व मैं यहाँ पे दिखाता हूं आपको, ध्यान देना।
उन्होंने खुद आपको इनकम स्टेटमेंट बना कर दिया है। सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल, दैट इज COGS, which is opening stock plus net purchases plus other direct expenses, बराबर ना? If you remember, other direct expense minus closing stock, ये होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिला 4 लाख माइनस 2 लाख 20 इज 1 लाख 80, ठीक है? तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया। लेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस किए उन्होंने 80,000, इसलिए उन्होंने बोला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 लाख। 1 लाख इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 50% इनकम टैक्स है, 1 लाख का 50% टैक्स है 50,000, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50,000। सिमिलरली करंट ईयर में 6 लाख के सेल्स थे, 3,60,000 का COGS है, 2,40,000 का ग्रॉस प्रॉफिट है, 1 लाख के इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो 1,40,000 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 50% टैक्स है, 1,40,000 का 50% 70,000, इसलिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स is 7,000। उन्होंने खुद होके आपको इनकम स्टेटमेंट दिया है एंड दे आर आस्क्ड टू प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल दिमाग लगाएंगे, हम ढूंढेंगे एब्सोल्यूट चेंज, हम ढूंढेंगे एब्सोल्यूट चेंज। सेल्स इंक्रीज फ्रॉम 4 lakhs to 6 lakhs प्लस 2 lakhs, एंड उसके बाद हम निकालेंगे परसेंटेज चेंज। सेल्स देखो 4 lakhs हैज बिकम 6 lakhs, 2 lakhs से चेंज है, सो 2 lakhs विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर 2 lakhs, सो 4 लाख का सेल करंट ईयर में 2 लाख से इंक्रीज हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट 50% से इंक्रीज हुआ है। COGS 2,20,000 has become 3,60,000, increased by 1,40,000, 1,40,000 divided by 2,20,000 multiply by 100, 63,000 से देखो सेल्स इंक्रीज हुआ है 50% से, बट कॉस्ट इंक्रीज हुई है 63% से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ध्यान देना, मतलब इस ईयर में जितने से सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं उससे ज्यादा से कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। ग्रॉस प्रॉफिट 1,80,000 था, अब 2,40,000 हुआ है, तो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है 60,000 से, बट प्रॉफिट परसेंटेज इंक्रीज हुआ है 33% से। सेल्स 50% से इंक्रीज हो रहा है, बट प्रॉफिट 33% से इंक्रीज हो रहा है। रीजन इज वेरी सिंपल, कॉस्ट इज इंक्रीज बाय मोर परसेंटेज देन द सेल्स। आगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस 80,000 थे, 1 लाख हुए तो दे आर इंक्रीज बाय 20,000, they are increased by 20,000, गलत है, it is increased by 20,000, 20,000 divided by 1 lakh, 20,000 divided by 80,000, 1/4, 25% से इंक्रीज। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 लाख था, 1,40,000 हुआ है, 40,000 से इंक्रीज हुआ है, 40,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, 40% से प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंक्रीज हुआ है। लास्ट ईयर से इस ईयर में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 40% से इंक्रीज हुआ है, इट्स गुड फॉर यू। 50,000, 70,000, 20,000 से टैक्स इंक्रीज हुआ है, रुपीज प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो टैक्स के रुपीज भी इंक्रीज होगा ना। 20,000 से प्रॉफिट टैक्स इंक्रीज हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू 50,000, 20,000 डिवाइडेड बाय 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 इज ऑलमोस्ट 40%। आफ्टर टैक्स 50,000, 70,000, 20,000, 40,000। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो अरे ये कौन से क्वेश्चन है रे? कंपैरेटिव बैलेंस शीट के क्वेश्चन है, देखो देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, पेज नंबर 371, 371, ध्यान देना।
एक मिनट, 371 देखो, यहाँ पे कंपेरेटिव बैलेंस शीट का क्वेश्चन है। करंट लायबिलिटीज वर्किंग कैपिटल से माइनस होगा, वर्किंग कैपिटल ढूंढने के लिए करंट एसेट से माइनस होगा। रिजर्व ओन्ड कैपिटल, बैंक लोन बोरोड कैपिटल, शेयर कैपिटल ओन्ड कैपिटल, बैलेंस शीट टैलीड है, ये टोटल है। फिक्स असेट्स 12 lakhs 18 lakhs लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20, ये 2 lakhs है, 20,000 नहीं है, 2 lakhs है, चेंज करो, वो 2 lakhs है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वहां पे चेंज करो, पेज नंबर 371 टेक्स्ट बुक में निकालो। 371 12 लाख का फिक्स असेट है, उस पे 2 लाख का डेप्रिसिएशन है, तो हम बोलेंगे 10 लाख के फिक्स असेट है। नेट फिक्स असेट है 10 lakhs। 18 लाख का फिक्स असेट है, 3 लाख का डेप्रिसिएशन है, मतलब नेट फिक्स असेट है 15 लाख प्लस करंट असेट 5 लाख, 10 लाख प्लस 10 lakhs प्लस 5 lakhs is 15 lakhs, 15 lakhs प्लस 9 lakhs 24 lakhs। तो उन्होंने कैसे किया ध्यान देना। कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट उन्होंने पहले एप्लीकेशन ऑफ फंड्स लिखा, फिक्स असेट्स, नेट फिक्स असेट निकाले उन्होंने, नेट फिक्स असेट ग्रॉस लेस डेप्रिसिएशन इज नेट फिक्स असेट, ठीक है। फिर उन्होंने करंट असेट्स लेस करंट लायबिलिटीज, ये फिक्स असेट्स है। ये वर्किंग कैपिटल है, सो उनको वर्किंग कैपिटल मिला। ए इज अ फिक्स असेट, बी इज अ वर्किंग कैपिटल, देयरफॉर टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, उसको उन्होंने बोला कैपिटल एम्प्लॉयड, और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स अपने सिंपल लैंग्वेज में, एप्लीकेशन ऑफ द फंड 13 लाख, कैसे 10 lakhs का फिक्स असेट, 15 लाख के फिक्स असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल 3 lakhs एंड 5 lakhs, 10 lakhs प्लस 3 lakhs इज 13 lakhs, 15 lakhs प्लस 5 lakhs इज 15 lakhs प्लस 5 lakhs इज 20 lakhs, ये 20 lakhs होना चाहिए, चेंज करो उधर 20 lakhs होना चाहिए, वो गलत टाइप हुआ है, इसलिए 13 lakhs has become 20 lakhs से 7 lakhs है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिखने का स्टाइल चेंज किया, नथिंग एल्स। हम हमारी तरीके से लिखेंगे हमेशा, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, इस एप्लीकेशन ऑफ फंड्स है ना 13 लाख, उसमें से उन्होंने लोन माइनस किया, मतलब क्या हो गया कि ओनर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड इज 8 लाख, और उन्होंने दिखाया 8 लाख कैसे आया, नथिंग एल्स। हम जैसे करते वैसे करो, ठीक है। इनका थोड़ा फॉर्मेट चेंज है, बट डोंट वरी। आगे, दिस इज होमवर्क, इनके जैसे करने की जरूरत नहीं। हम लिखेंगे सोर्सेस ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड, सोर्सेस में ओन्ड, ओन्ड में आएगा कैपिटल ऑफ 5 lakhs प्लस रिजर्व्स ऑफ 3 lakhs, टोटल 8 लाख। मैं करंट, मैं 18 का लिख रहा हूं, 2018 का, ठीक है। बोरोड में आएगा, बोरोड में आएगा लोन ऑफ 5 lakhs, टोटल 13 लाख के सोर्सेस ऑफ फंड है, एंड देन यू हैव टू राइट एप्लीकेशन ऑफ द फंड। फिक्स असेट्स 10 lakhs एंड 15 lakhs, मैं प्रीवियस ईयर का लिख रहा हूं 10 lakhs प्लस वर्किंग कैपिटल यहां पे आया है 3 lakhs, $13 lakhs, डन।
तो उन्होंने बोला एनालिसिस दे दो, एनालिसिस कमेंट अपॉन द चेंजेस। तो आप बोल सकते हो कि फिक्स असेट्स आर इंक्रीज बाय 50%, मींस कंपनी हैज परचेस मोर ऑफ द फिक्स असेट्स, ठीक है। देन करंट असेट्स आर इंक्रीज बाय 80%, ऐसे लिखने का, करंट असेट्स आर इंक्रीज बाय 80%, current liabilities are increased by 10%, means company has not paid the liabilities or liabilities have increased in the current year. Working capital increased by 66%, company, right, ऐसे एक सेंटेंस लिखा देखो, आगे आई डोंट थिंक कि ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपको। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 15। देखो ये एनालिसिस होता है ना, पहले तो ये बात समझ लेना, एनालिसिस पर्सन टू पर्सन अलग होता है, और दूसरी बात फॉर्मेट भी पर्सन टू पर्सन अलग हो सकता है। इससे कुछ नहीं कि फॉर्मेट स्टैंडर्ड ही होता है एनालिसिस के केस में, आपकी मर्जी है आपको कैसे फॉर्मेट बनाना है, बट एक जनरली स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करो, मतलब एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए। ओके, ध्यान देना क्या क्या दिया है। सेल्स, सेल्स रिटर्न हम नेट करके लिखेंगे, नेट सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 40%, जीपी रेशियो 40%, मतलब जितना सेल होगा उसका 40% ग्रॉस प्रॉफिट होगा, नो इश्यूज। नेट सेल का 40% 2018 में ग्रॉस प्रॉफिट होगा, एंड 2019 में 50% ऑफ द नेट सेल्स विल बी द ग्रॉस प्रॉफिट, नो इश्यूज। Office and admin expense is operating expense. Selling and distribution expense are operating expense. Other income हम उसको नॉन ऑपरेटिंग इनकम बोलेंगे, अदर एक्सपेंसेस हम उसको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलेंगे, ठीक है। टैक्स रेट इज 50%। हमें कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट करना है, लेट्स स्टार्ट कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। particulars, previous year, current year, absolute change, and percentage change। करें स्टार्ट, फॉर्मेट पहले ड्रॉ करके ले, लिखो ग्रॉस सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, therefore net sales less COGS, cost of goods sold, therefore gross profit, less operating expense, उसमें ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस, then selling and distribution expense S&D, इसकी सब टोटल आएगी। सेल्स, नेट सेल्स आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा यहाँ पे,
फिर मैं ये इसको माइनस करूंगा, देयरफॉर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलने के बाद लेस एड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, अदर इनकम हम नॉन ऑपरेटिंग बोलेंगे अब, लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अदर एक्सपेंसेस को नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलेंगे, ठीक है। देयरफॉर प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस प्रोविजन फॉर टैक्स, therefore profit after tax PAT, चलो कॉपी पेस्ट का काम करते हैं। चलो सेल 6 लाख 4 लाख 50 डिक्रीज हुआ है क्या? अच्छा, सेल 6 लाख था पहले, अब हुआ है 4 लाख 50, एब्सोल्यूट चेंज वगैरह बाद में निकालते। चलो सेल्स रिटर्न 1 लाख, अभी 50,000 हुआ है, so net sales is 5 lakhs and यहाँ पे net sales is 4 lakhs। उन्हें हमें जीपी रेशियो दिया 40%, मतलब जो सेल्स है उसका 40% ग्रॉस प्रॉफिट है। ले लो 5 लाख का 40% 2 लाख, मतलब सीओजीएस रहेगा 3 लाख। Similarly, in 2019, GP ratio is 50%. So 2019 में जो नेट सेल्स है उसका 50% योर ग्रॉस प्रॉफिट है। 4 लाख का 50% 2 लाख, and therefore your COGS is 2 lakhs। अरे समझा क्या? जीपी रेशियो मतलब क्या? ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज होता है, राइट। 40% ऑफ द सेल्स इज ग्रॉस प्रॉफिट। जीपी रेशियो मतलब क्या? परसेंटेज ऑफ सेल्स इज ग्रॉस प्रॉफिट। सो जब लिखा है जीपी रेशियो 40%, मतलब 40% ऑफ द नेट सेल्स इज ग्रॉस प्रॉफिट, 50% ऑफ द नेट सेल्स ऑफ नेट सेल्स इज ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो आप सीओजीएस ढूंढ सकते हो इजीली, 3 लाख एंड 2 लाख सीओजीएस आ गया। फिर 50-40 एडमिन एक्सपेंस, ओके, देन सेलिंग 50-40 सेम, टोटल हो गए 1,80,000। So operating profit 2 lakhs minus 1 lakh is 1 lakh। यहाँ पे 2 lakhs minus 80 1 lakh 20। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इंक्रीज, भले ही सेल्स कम हो बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इंक्रीज। रीजन इज वेरी सिंपल, सेल्स रिटर्न डिक्रीज हुए, कॉस्ट डिक्रीज हुई है, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, आपका सीओजीएस डिक्रीज हुआ है। समझ में आया? ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज पहले 40% था, 50% है, इसलिए आपका प्रॉफिट ओवरऑल इंक्रीज हुआ है। भले सेल कम होने दो बट जीपी रेशियो स्ट्रॉन्ग है आपका कंपैरेटिवली। देन नॉन ऑपरेटिंग इनकम में 25,000 15,000, देन ऑपरेटिंग इनकम अदर एक्सपेंसेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस सेम है 5,000 5,000।
Therefore, profit before tax 1 lakh plus 25 minus 5, 1 lakh 20. 1 lakh 20 plus 50 minus 5, 1 lakh 30. ठीक है. टैक्स रेट दोनों ईयर में 50%, 50%, मतलब 1 लाख 20 का 50% टैक्स रहेगा 60,000. Therefore, profit after tax will be 60,000. 1 लाख 30 का 50% टैक्स रहेगा 65,000, मतलब 65,000 will be your profit after tax. लिखो. हो गया लिख के? लिखो जल्दी. एवरीथिंग विल बी गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक से लिखना है बस. चलो अब एब्सोल्यूट चेंज. सेल्स, ग्रॉस सेल्स are decreased by 1,50,000 divided by 6 lakhs, 1/4. It is decreased by 25%. Then calculator. Okay. सेल्स रिटर्न पहले 1 लाख थे, अब 50,000 है. सेल्स रिटर्न हैज डिक्रीज बाय 50,000. नेगेटिव 50,000 या हैज डिक्रीज बाय 50,000 ना. सेल्स रिटर्न हैज डिक्रीज बाय 50,000. So 50,000 with respect to 1 lakh, they have decreased by 50%. Then 1/2, 50%. नेट सेल्स 5 लाख से 4 लाख हुआ है, डिक्रीज बाय 1 लाख. इट इज डिक्रीज बाय 1/5 ना, 20%. देन आगे सीओजीएस 3 लाख से 2 लाख हुआ है, डिक्रीज बाय 1 लाख. सीओजीएस डिक्रीज बाय 1 लाख. 1/3 से डिक्रीज हुआ है 1 लाख विथ रिस्पेक्ट टू 3 लाख, 33.33%. Then gross profit remains constant. Then office expenses decreased by 10,000. 1/5 decrease हुआ है, 10,000 by 50,000, decreased by 20%. Selling and distribution expense decreased by 10,000. 10,000 with respect to 50,000, 20% से decrease हुआ है. Good, expense से decrease होना is good. टोटल एक्सपेंसेस ये 20,000 से डिक्रीज हुआ है. 20,000 डिवाइड बाय 1 लाख 20% से डिक्रीज हुआ है. ओके. ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1 लाख से 1,20,000 हुआ है. प्रॉफिट इंक्रीज बाय 20%. इज 20,000 इज गुड. ओवरऑल 20% से 20,000 डिवाइड बाय 1 लाख. नॉन ऑपरेटिंग डिक्रीज बाय 10,000. 10,000 विथ रिस्पेक्ट टू 25,000. 40% से डिक्रीज हुआ है. ऑपरेटिंग एक्सपेंस रिमेन कांस्टेंट. प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10,000 से इंक्रीज हुआ है. 10,000 विथ रिस्पेक्ट टू 120 इंक्रीज बाय 8.33%. टैक्स हैज इंक्रीज बाय 5,000. 5,000 डिवाइडेड बाय 60,000.
8.33% से इंक्रीज हुआ टैक्स। योर प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज बाय 5,000। इट इज गुड पोजीशन, आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 8.33% से इंक्रीज हुआ है, रियली गुड। चेक डियर आंसर। ग्रॉस सेल्स, नेट सेल्स, ये नेट सेल्स आ गया, सेल्स डेटा माइनस करने का। लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपको क्या मिला, राइट? आपको मिला, राइट? आपको यहाँ पे मिला ग्रॉस प्रॉफिट, लिखो यहाँ पे, लिखा नहीं होगा। लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यहाँ पे आपको मिला ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसकी सब टोटल ले होगा। Therefore, this is profit before tax। उनकी स्पेलिंग एरर है बहुत जगह पर, चेंज करो। ये कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट है, क्या डिफरेंट है? कुछ नहीं, कंपेरेटिव एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। चलो क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 5 टाइम पास क्वेश्चन सर, और मैं बाद में होमवर्क दूंगा 3-4, करो। प्रिपेयर कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट, सेल्स है, इनकम टैक्स रेट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सिंपल है। देयरफॉर कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट लिखो। पर्टिकुलर्स, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, एंड परसेंटेज चेंज। सबसे पहले सेल्स 2 lakhs 3 lakhs, ठीक से लिखना, करंट ईयर प्रीवियस ईयर, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स या COGS, कॉस्ट ऑफ सेल्स इज 1,20,000 and 80, therefore gross profit 1,80,000 is a gross profit, 2,20,000 is a gross profit, less indirect expense is net profit before tax, indirect हाँ 8,000 12,000, therefore profit before tax EBT 1,72,000, 2,08,000, less provision for tax. Don't say just tax, say provision for tax, that is more appropriate, at the rate of 50%, दोनों जगह पर।
मतलब हाफ टैक्स होगा, 70,000 का हाफ 86, तो बच्चेगा भी 86। 2,08,000 का टैक्स 1,04,000, बच्चेगा भी 1,04,000। Therefore, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या हुआ? सीओजीएस मैंने रॉन्ग लिया है। क्या रॉन्ग लिया है? ओ अच्छा अच्छा, ये 80 होना चाहिए। अच्छा 80 माइनस 8 72 36। ठीक है, लिखो एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। सेल्स इंक्रीज बाय 1 लाख, गुड। 1 लाख आउट ऑफ 1 लाख डिवाइड बाय 2 lakhs, 1/2 है, मतलब 50% से इंक्रीज हुआ। सीओजीएस 1,20,000 का 80,000 हुआ है। कॉस्ट डिक्रीज बाय 40,000, इट्स गुड फॉर यू एक्चुअली, डिक्रीज इन कॉस्ट इज गुड। 40,000 से कॉस्ट डिक्रीज हुई है, 40 डिवाइड बाय 1,20,000, 1/3, ऑलमोस्ट 33.33% से डिक्रीज हुआ, 1/3। इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट आपका इंक्रीज हुआ है 60,000, कितने से इंक्रीज हुआ है? 1,40,000 से इंक्रीज हुआ होगा। सेल्स इंक्रीज हुआ है 1 लाख, उसकी वजह से ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हुआ होगा। कॉस्ट डिक्रीज हुई 40,000, उसकी वजह से भी ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हुआ होगा। टोटल इंक्रीज हुआ होगा 1,40,000 से। 1,40,000 डिवाइडेड बाय 80,000, 1,40,000 डिवाइडेड बाय 80, ऑलमोस्ट 175% से आपका ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस 8,000 से 12,000 हुए, एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय 4,000। लिखो, कंप्लीट करो बाकी। एक्सपेंस इंक्रीज बाय 4,000, 4,000 डिवाइडेड बाय 8,000, 1/2, 50% से इंक्रीज हुआ है, 50% से। करो कंप्लीट जल्दी। सो इट इज, ये 4,000 से डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, सॉरी, 50% से इंक्रीज हुआ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 70,000 has become 208, 2,08,000, 1,36,000 से इंक्रीज हुआ है। 1,36,000 डिवाइडेड बाय 70,000, ऑलमोस्ट 188% से इंक्रीज हुआ है। प्रोविजन फॉर टैक्स इंक्रीज हुआ है, 36 से 1,04,000 हुआ है। इट इज इंक्रीज बाय 68,000 डिवाइडेड बाय 36,000, इंक्रीज बाय 188.88%. Your net profit is increased by 36,000 has become 104, 68,000. Overall increase by 188.88%. That's it. लिखो,
कंपेरेटिव बैलेंस शीट, कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट। हो गया लिख के? यस लिखो जिनका हुआ है, मेक इट फास्ट। आपको कैलकुलेट करना होगा परसेंटेज, दैट्स इट, नथिंग ए ग्रेट डील। फिफ्थ हुआ, तो योर होमवर्क इज, लेट मी शो यू। Question number 6 is homework. 6 is the homework. Everyone has to do. 6. Then ध्यान देना, लेट मी शेयर माई एक्सेल। ध्यान देना, खाली ऑब्जर्व करो। आपको मेरी एक्सेल दिख रही है क्या? नो, होपफुली नो। या ग्रेट, स्टॉप शेयर। ध्यान देना, अगर आपको कंपैरेटिव समझ में आया है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, तो कॉमन सेंस समझने में कोई टाइम नहीं लगेगा। ध्यान देना, फॉर कंपैरेटिव यू रिक्वायर 2 years वैल्यूज। कंपैरेटिव बैलेंस शीट के लिए या कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट के लिए आपको 2 साल के वैल्यू चाहिए, एक करंट ईयर एंड एक प्रीवियस ईयर। ध्यान देना, कॉमन साइज के लिए आपको 1 ईयर का भी बहुत हो गया। जब आप कंपैरिजन करते हो तो 2 वैल्यूज के बीच में करते हो ना, तो यू रिक्वायर 2 years वैल्यूज। कॉमन साइज के लिए 1 साल के भी बहुत हो गए, लाइक दिस। I don't know. कोई भी एक आधा क्वेश्चन उठाते हैं। महाराष्ट्र बोर्ड के रिलेटेड क्वेश्चन होना चाहिए। एक सेकंड, एग्जाम्पल ध्यान देना, ध्यान देना खाली। कॉमन साइज बैलेंस शीट, ठीक है, कॉमन साइज बैलेंस शीट। सबसे पहले लिखा जाएगा सोर्सेस ऑफ फंड्स, उसमें आ गया ओनर्स फंड्स, उसमें आ गया कैपिटल, उसमें आ गया रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, फिर आ गया बोरोड फंड्स, उसमें आ गया लोन्स एंड डिबेंचर्स। यहां पे आएगा टोटल सोर्सेस ऑफ फंड्स।
मैं ठीक से लिखता हूं, पहले खाली ध्यान देना। फिर आएगा एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। फिक्स्ड एसेट्स, और जिनको नॉन करंट एसेट भी बोलते हैं, नॉन करंट एसेट्स। लोन्स, बोरोड फंड्स को नॉन करंट लाइबिलिटीज बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट्स एंड वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स लेस करंट लायबिलिटीज। ध्यान देना, जस्ट ऑब्जर्व करो। टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, ध्यान देना। सपोज मान के चलो मान के चलो मान के चलो कैपिटल हमारे पास 150 है, रिजर्व्स एंड फंड्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस 50,000 है। टोटल है हमारे पास, टोटल है 200 रुपीज के ओन कैपिटल, ओन फंड्स। लोन हमारे पास मान के चलो 40 रुपीज का है, डिबेंचर 60 रुपीज के है, एंड देयरफॉर हमारे पास टोटल 100 रुपीज के बोरोड फंड्स हैं। ठीक है, सो टोटल सोर्स इज 200 का ओन कैपिटल, 100 का बोरोड कैपिटल, 300 रुपीज के हमारे पास टोटल सोर्सेस ऑफ फंड्स है। 300 रुपीज का हमारे पास टोटल सोर्सेस ऑफ फंड्स है। उसमें से मान के चलो 200 रुपीज या 160 रुपीज के फिक्स एसेट्स हैं। ठीक है, 100 रुपीज के इन्वेस्टमेंट्स हैं। करंट एसेट्स आर ऑफ ₹80, करंट लायबिलिटीज आर ऑफ 40, एंड देयरफॉर नेट वर्किंग कैपिटल इज 80 minus 40, 40. And therefore, your application of fund is 160 plus 100 plus 40, 300, 300. Yes. Okay. दोनों टैली हुए? Yes. Yes, टैलीड है। अब ध्यान देना क्या करना होता है। एक्चुअली हमें करना क्या है, कॉमन साइज में करना क्या है, ये जो टोटल होता है ना, ये जो टोटल होता है इसको 100% मानने का, इसको 100% मानने का, एंड फिर इन सब वैल्यूज को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का। ये जो टोटल होता है ना इसको 100% मानने का। ये जो यहाँ पे लाइबिलिटी जो टोटल आ रही ना
300, अगर 300 100% है तो 150 कितना, 50 कितना, 200 कितना, 40 कितना, 60 कितना, 100 कितना, लाइक दैट। अगर ये 300 रुपीज टोटल आपने अप्लाई किया तो उसमें से 160 फिक्स एसेट के लिए, मतलब कितने परसेंट फिक्स एसेट के लिए, 100 रुपीज कितने परसेंट इन्वेस्टमेंट के लिए, कितने परसेंट आपके करंट एसेट पे, लाइक दैट। तो देखो, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा अगर 150 रुपीज आउट ऑफ 300 रुपीज कैपिटल है, टोटल सोर्स इज 300, उसमें से 150 कैपिटल है, तो कितना परसेंट का कैपिटल है, 50% का कैपिटल है। सिमिलरली अगर 50 रुपीज रिजर्व है आउट ऑफ 300 रुपीज, तो कितने परसेंट के रिजर्व है, 16.67% के रिजर्व है, ठीक है। अगर 40 रुपीज का लोन है आउट ऑफ 300 के सोर्सेस, 300 रुपीज जो हमारे पास आए उसमें से 40 रुपीज का लोन है, तो कितने परसेंट का लोन है, 13.33। अगर 60 रुपीज का डिबेंचर्स है आउट ऑफ 300, तो 100 में से कितना रहेगा, 20% सोर्स इज थ्रू डिबेंचर्स, मतलब ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट यू कैन सी 33% कहां से, बोरोड कैपिटल से, दान देना। 300 रुपीज के मेरे सोर्सेस ऑफ फंड्स है, क्या बोल रहा हूं, दान देना। 300 रुपीज के मेरे सोर्सेस ऑफ फंड्स है, उसमें से 200 रुपीज खुद का है एंड 100 रुपीज दूसरों का है, दूसरों से लिया है। मतलब कैन आई से ऑलमोस्ट 66% खुद का है एंड 33% दूसरे का है, तो उसको ऐसे देखा जाता है। दिस इज परसेंटेज। सो मैं क्या बोलता हूं कि अगर मेरा कैपिटल 50% है, जो सोर्स ऑफ फंड है उसमें से कैपिटल 50% है, रिजर्व 16.67% है, इसलिए इन दोनों की टोटल 16.67% है। मेरे लोन 13.33% है, डिबेंचर्स 20% है, बोरोड कैपिटल ओवरऑल बोरोड कैपिटल 33.33% है। यू कैन टेक द टोटल ऑफ दिस, आप ऐसे भी कर सकते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, राइट, दिस हैज टू बी 100%, 100%, यस। तो अगर मेरा 100 रुपीज का सोर्स रहेगा, अगर मेरा 100 रुपीज का सोर्स रहेगा, उसमें से 50 रुपीज कैपिटल रहेगा, 16.67 रुपीज रिजर्व रहेंगे, 13 रुपीज का लोन रहेगा, 20 रुपीज का डिबेंचर्स रहेगा। बिकॉज मेरे पास 300 रुपीज का क्या है, सोर्स है। तो अगर 300 रुपीज, वो 3000 ऐसे मान के चलो, रुपीज आर इन 1000, ये रुपीज इन 1000 है। तो मेरे पास 300,000 रुपीज है सोर्स, तो मैं उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहा हूं। मतलब अगर मेरे पास 100 रुपीज रहेगा तो उसका बाइफर्केशन क्या रहेगा। सिमिलरली अगर मेरे पास 300 रुपीज का एप्लीकेशन ऑफ फंड्स है, उसमें से 160 रुपीज मैंने फिक्स एसेट के लिए डाले, तो कितना परसेंट फिक्स एसेट के लिए डाला है, 160 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 100, ऑलमोस्ट 53% मैंने फिक्स एसेट में इन्वेस्ट किया। 300 रुपीज जो मेरा अप्लाइड है, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स है, उसमें से 100 रुपीज इन्वेस्टमेंट में डाले, तो कितना परसेंट मैंने इन्वेस्टमेंट में डाला है, 100 आउट ऑफ 300, 1/3, 33% होना चाहिए। यस, अगर मेरे करंट एसेट 80 रुपीज के है या डायरेक्टली वर्किंग कैपिटल, कोई फर्क नहीं पड़ता, 40 रुपीज वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टेड है, 300 रुपीज में से 40 रुपीज वर्किंग कैपिटल में, मतलब कितना परसेंट, ऑलमोस्ट 13%। तो इनकी टोटल
आपकी 100% आनी चाहिए। यस, लेट मी 100%। ये आ गया कॉमन साइज। सो कॉमन साइज में क्या किया जाता है, सिंपली बोलो आपको, कॉमन साइज में क्या किया जाता है कि मेरा जो टोटल है ना, अगर वो 100 होगा तो बाकी कितने रहेंगे। जो मेरा टोटल सोर्स है 300, 300 crores, 300,000, 300 lakhs, जो कुछ भी रहेगा, अगर वो 100 होगा तो बाकी कितने रहेंगे। So you have to convert everything into percentage. 150 out of 300, 50 out of 300, 40 out of 300, 60 out of 300. Similarly, अगर मेरा टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड 300 है, टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड 300 lakhs है, 300 crores है, 300,000 है, उसमें से 160 मैंने कहाँ पे डाले, फिक्स असेट। तो फिक्स असेट में कितना परसेंट गया है, 160 आउट ऑफ 300। इन्वेस्टमेंट मैंने 100 डाला है, 100 आउट ऑफ 300। सिमिलरली यहाँ पे वर्किंग कैपिटल में 40 है, 40 आउट ऑफ 300। इसकी टोटल आनी चाहिए 100। देखो 100%, यस, एंड इसकी टोटल आनी चाहिए 100%। हो गया, मतलब almost 66% of my sources is from my own and 33% of my sources are from the borrowed from third parties। जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है, ऑलमोस्ट 53% मैंने फिक्स असेट में डाला है, 33% मैंने इन्वेस्टमेंट में डाला है, एंड 13% मैंने वर्किंग कैपिटल में रखा है। समझा ये कंसेप्ट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये करंट ईयर का है, अगर आपको प्रीवियस ईयर के वैल्यूज दिए होंगे तो वैसे आपको उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट। अरे यस और नो, अरे यस और नो बोलो जल्दी। ये कॉमन साइज है, ये कॉमन साइज है, ठीक है। सो कल हम कॉमन साइज बैलेंस शीट करेंगे, वैसे हम कॉमन साइज P&L भी करेंगे, ठीक है, कल हम वो करेंगे। मैंने होमवर्क 2 क्वेश्चंस होमवर्क में दिए शायद से, आई हैव गिवन 2 क्वेश्चंस फॉर द होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ द अनसॉल्व्ड इज फॉर द होमवर्क। सो कल हम कॉमन साइज करेंगे, ठीक है। कॉमन साइज मतलब 100% में कन्वर्ट करना, सब वैल्यूज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, ठीक है, दैट इज द कॉमन साइज। हाँ, प्रेजेंटेशन सेम रहेगा ना, ये अंदर का थोड़ी ही चेंज होगा, ये प्रेजेंटेशन थोड़ी ही चेंज होगा, ये तो वही रहेगा। खाली क्या करना है, मैं बोल रहा हूं अगर मेरे 300 crores रुपीज मैंने सोर्स ऑफ फंड है, उसमें से कैपिटल के थ्रू कितना है 150, मतलब कितना परसेंट है 50, अगर रिजर्व के थ्रू है तो कितना परसेंट है। अगर टोटल 200 आप देख रहे हो कि मेरा किसके थ्रू है, मेरे खुद के थ्रू है, 300 में से 200 मेरा खुद का है तो कितना परसेंट है। 40 अगर लोन के थ्रू है आउट ऑफ 300 तो लोन कितने परसेंट है टोटल में से। 60 अगर डिबेंचर्स के थ्रू है तो डिबेंचर्स कितने परसेंट है मेरे टोटल में। अगर 100 रुपीज आउट ऑफ 300 किसी और के रिटर्न करने पड़ेंगे कभी ना कभी, तो वो 33% है। मैंने टोटल जो अप्लाइड किया 300, अगर उसमें से 160 अगर मैंने फिक्स एसेट के लिए डाला है तो कितना परसेंट मैंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है फिक्स एसेट्स में, कितना परसेंट मैंने इन्वेस्टमेंट में डाला है मेरा अप्लाइड, और कितना मेरा वर्किंग कैपिटल है जो डे टू डे बेसिस पे यूज होता है, ठीक है। सो दिस इज कॉमन साइज बैलेंस शीट, दिस इज कॉमन साइज बैलेंस शीट, ठीक है। टोटल शुड बी 100%, टोटल शुड बी 100%, ठीक है। आगे, ठीक है, आज यहाँ पे रुकते हैं।
टुमारो आई विल कैरी फॉरवर्ड दिस कंसेप्ट ऑफ द कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड कॉमन साइज P&L। वो कल खत्म हो जाएगा, दोनों खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।